फ्रेंड्स, थोड़े से गैप के बाद ये लेक्चर है और गैप का रीज़न मैंने आपको बताया था। जो हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है, बट काम तो करना ही है। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ड्राइडन एंड द असिस्ट. In this lesson we are going to discuss about 2-3 more poets of neoclassical period, especially Pope and Jonathan Swift. In this age basically Steyrs were written, and if we talk about Steyer, so especially this person Horace dominated, and second one is Juvenal. Both of these ancient poets were imitated by the neoclassical poets, and this age of reason especially known for its Steyrs, whether it is John Dryden, whether Jonathan Swift or Alexander Pope. Friends, right away we are going to start with Jonathan Swift. Jonathan Swift. Jonathan Swift, who born in 1667, died in 1745. Friend, he born in Dublin. Irish थे, born in Dublin. The parents were English. And his patron was William Temple. The book Battle of Books, the book dedicated to विलियम टेम्पल, ये पैटर्न थे जोनाथन स्विफ्ट के, विलियम टेम्पल. ये इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ा सा. अब देखिए, जो जोनाथन स्विफ्ट हैं, a great stylist he was, a great stylist. Dryden, Pope or Jonathan Swift, three great stylists of that age. If we talk about Jonathan Swift, he wrote basically A Tale of Tub, Battle of Books, or Gulliver Travels, Modest Proposal, so many great styles. So we start with A Tale of Tub. A Tale of Tub, it's an important work, and it was published in 1704, and this book discusses the development of Christianity. This poem is a tale of a king who has 3 sons. एक किंग की कहानी है जिसके 3 बेटे होते हैं, और उन 3 बेटों के नाम है पीटर, मार्टिन एंड जैक. पीटर, मार्टिन एंड जैक. पीटर, Martin and Jack. Jack represents Protestant, Church of England, and Roman Catholic. जो हमारे स्विफ्ट हैं, स्विफ्ट रोमन कैथोलिक थे. तो दिस टेल, द किंग हैज अ लेगेसी in the form of a court.
and he handed over that coat to his sons and also told how to wear it. How to button it, how to unbutton it, and this coat and wearing of this coat is the symbol of origin and development of Christianity. किस तरीके से, जैसे यहाँ से फिर जो है प्रोटेस्टेंट ये वाले लोग, हाउ दे एंटर, हाउ यू कैन से देर इज द ब्रांचेज, उसके बाद जो है ब्रांचेज बनी, प्रोटेस्टेंट बने, प्यूरिटन है भाई जो है शुरू में न्यू ओल्ड टेस्टामेंट, देन न्यू टेस्टामेंट, यू नो रोमन कैथोलिक चर्च से फिर इंग्लिश चर्च वगैरह, इस तरीके से जो डेरिवेशन हुआ है उसके ऊपर पूरा का पूरा ये बुक है, पूरी टेल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट फैक्ट इज टेल ऑफ टब written by Jonathan Swift, published in 1704. This book is about the growth and development of Christianity, means religious work it is, and it's a style. And three sons are there of King Peter and John, Peter, Martin and Jack. Peter represents Roman Catholic, Martin represents Church of England and Jack represents Protestant. एंड लेगेसी ऑफ कोट, ये कहानी इसकी है. थोड़ा सा यदि बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट्स इंपॉर्टेंट एंड वी आर टू कीप दिस इन व्यू सो दैट इफ एनी क्वेश्चन वी फाइंड फ्रॉम दिस बुक वी शुड बी कैपेबल टू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली. द नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट जो वाक है दैट इज बैटल ऑफ बुक्स. बैटल ऑफ बुक्स इट ऑल्सो पब्लिश्ड इन 1704. ये क्वेश्चन नेट में किस तरीके से आया था, ये मेरे ख्याल से 15 या 14 या 15 में क्वेश्चन रहा होगा, शायद डेट तो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है. क्वेश्चन पूछा गया था इन विच लाइब्रेरी द बैटल ऑफ बुक्स टुक प्लेस. इन विच लाइब्रेरी द बैटल ऑफ बुक टुक प्लेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. तो ये पूछा गया था तो हमें पता होना चाहिए. तो वो जो that is St. James Library, London. The setting of the book is St. James Library, London. A battle of books, and there is a war between modern versus ancients. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बुक. और बीच में जो वोटली जो है उनकी मदर, इन द फॉर्म ऑफ बुक सी एंटर्स एंड सी इंस्पायर्ड मोटिवेटेड हर सन. एंसेंट्स के जो पैटर्न है वो पाला है, ये पैटर्न है, और इनके पैटर्न जो है वो टेम्पल है, विलियम टेम्पल. Ancients were led by Homer, Aristotle, Pindar, etc. And here Milton, जो बड़ा नाम है, कोली, और जो कि उस टाइम के जो मॉडर्न पोइट्स थे देवर इस साइड पे वो थे. तो अभी जो वॉर जो है होता है रियल का, मतलब जो बुक में मेंशन है, अब यहां से जो पिंडर है, ही किल्ड सो मैनी, होमर, अरिस्टोटल, वर्जिल है. अब वर्जिल का सामना मिल्टन से होता है. तो मिल्टन कॉल्ड वर्जिल फादर, ठीक है ना. और ये क्या करते हैं, फिर अपना आर्मर एक्सचेंज कर लेते हैं. जो बैटल ऑफ बुक्स है उसमें मिल्टन का सामना वर्जिल से, वर्जिल को फादर बोलता है, आर्मर चेंज कर लेते हैं. और जो मॉडर्न पोएट है जो वोल्सी है, वो जो इनका पोएट है एंसेंट, उसका नाइट में आर्मर चोरी कर लेते हैं वगैरह वगैरह. इस तरीके के इंसिडेंट्स इस बुक में दिखाई गई हैं, इस वर्क में दिखाई गई हैं. इट्स अगेन अ स्टायर, और स्पेशली इट वाज डेडिकेटेड टू
विलियम टेम्पल। ये याद रखना है कि जो विलियम टेम्पल है उनको ये डेडिकेटेड है बुक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनता है। अब देखिए जो विलियम टेम्पल हैं, विलियम टेम्पल की एक बेटी होती है, इलिजिमेट डॉटर है वो है इस्थर जॉनसन। ये कौन है? शी इज द इलिजिमेट डॉटर ऑफ विलियम टेम्पल। और ऐसा माना जाता है कि इस्थर जॉनसन के साथ जोनाथन स्विफ्ट का अफेयर था सीक्रेटली। यहां तक बोला जाता है कि दे सीक्रेटली मैरिड। अब उसके बारे में कितना सच्चाई है वो तो वो ही जाने, लेकिन ऐसा क्रिटिक्स बोलते हैं, बुक्स में मेंशन मिलता है। तो हमें जो है इस्थर जॉनसन का भी पता होना चाहिए और उनका जोनाथन स्विफ्ट के साथ क्या रिलेशन था उसके बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आजकल बायोग्राफी से भी एक आध क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब हम आगे चलें बैटल ऑफ बुक से। मास्टरपीस बोल सकते हो, गुलिवर्स ट्रैवल, Gulliver's Travels, published in 1726. In this book, 4 parts are there, 4 books are there, you can call, and the protagonist is Dr. Samuel Gulliver. ठीक है, he is a Dr. Samuel Gulliver। और इनके घर वालों से जो है इतने खुश नहीं है वो इनके जाने पे सी पे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम, द नेम ऑफ द शिप इज एंटीलोप, शिप पे जाता है एज अ असिस्टेंट सर्जन, एज एन असिस्टेंट सर्जन जाता है। हर बार होगा क्या, स्टॉर्म आता है और जो है शिपरैक होता है। एंड गुलिवर अलोन सर्वाइव्ड। ठीक है, और वो किसी तरीके से सी शोर पर पहुंच जाता है। ठीक है, एंड देन ही लैंडेड ऑन एन आइलैंड एंड द नेम ऑफ द आइलैंड इज लिलीपुट। लिलीपुट, जो लिलीपुट आइलैंड है, ये जब वहां जाता है तो ही स्लेप्ट देयर, थका हुआ था, सो जाता है। एंड व्हेन ही वोक अप ही फाउंड हिमसेल्फ टाइड विद थ्रेड्स। जब उनको होश आता है, आंखें खुलती हैं, तो पूरी बॉडी के ऊपर उसके जो है धागे बांध दिए गए थे, क्योंकि अभी वो एक ऐसी जगह पर है लिलीपुट जहां पर जो लोग हैं उनका साइज बहुत छोटा है, मैक्सिमम 6 इंचेस। ठीक है, 6-6 इंच के लोग हैं। अब वो अपने तरीके से तो इसको कैप्टिव करने की कोशिश करते हैं, और वो थोड़ा सा भी हिलता है तो दे आर अटैकिंग हिम विद एरोज। और वो एरोज उनके कैसे हैं, जस्ट लाइक नीडल्स। लेकिन नीडल भी यदि बॉडी में चुभेगी तो पेन तो करेगी। अब दिक्कत क्या है, गुलिवर वॉज अ जाइंट फॉर देम। ठीक है, और गुलिवर के लिए वो क्या है, नथिंग। 6 इंच का कितना जो है साइज होता है। अब इनकी लैंग्वेज इसको ना आए, इसकी लैंग्वेज इनको ना आए, तो एट लास्ट ही वॉज कैरिड टू द किंग। कोर्ट में लेके जाते हैं उसको किंग के सामने, और ये पूरा डिटेल में बताया है कितने जो है कार्ट अरेंज किए, कितने हॉर्सेज हैं, पूरा एक जो है अपने हिसाब से। अब कोर्ट में उसको लेके जाया जाता है, उसको जो है एक जो सबसे बड़ा बिल्डिंग वहां का था वो रहने के लिए दी जाती है, जिसमें गुलिवर का आना पॉसिबल नहीं था। एंड फर्स्ट टाइम ही यूराइनेटेड देयर, जो अपने आप को रिलीव करता है वहां जाके। गुलिवर पानी पीने के लिए मांगता है तो वो कॉफी सॉरे जो है पिक्चर वो उठा कर लाते हैं। अब उसके लिए तो एक शिप बने, पूरा डिटेल यहाँ पर है कि किस तरीके से उसका खाने के लिए कितने लोग लगे, कपड़े सिलने के लिए कितने लोग लगे, पूरा डिटेल में है। और यहाँ पर जो है जो लिलीपुटियन किंग है
वहाँ का थोड़ा सा तौर तरीका बताता है कि लोगों के सिलेक्शन के तरीके क्या हैं, जंप करना, कूदना, उस बेस पे उनके जो है तौर तरीके हैं सिलेक्शन के। और ये लोग जो है शांति प्रिय नहीं थे, पीसफुल नहीं थे। वहाँ पर क्या है, लिलीपुट और लिलीपुट का जो नेबरिंग स्टेट है दैट इज ब्लेफेस्क्यू। अब दोनों के बीच राइवलरी है, और जब दोनों के बीच वॉर होने को है तो जो लिलीपुटियन किंग है ही कन्विंस क्या नाम इसका, गुलिवर, और उनके जो फ्लीट है, शिप जो है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलता है। अब गुलिवर के लिए तो उनका जो सी था वो महज एक पॉन्ड टाइप था, और वो उनको जो है पकड़ के सबको खींच लेता, बट ही डिड नॉट किल इवन अ सिंगल पर्सन। ठीक है, और यहाँ पर उसके खिलाफ जो है ट्रीजन का भी केस होता है। ये भी बोला जाता है कि उसके जो सेनापति हैं उसकी वाइफ के साथ इनकी इलिसिट अफेयर है। अब सोचने की बात है वो कितने मूर्ख थे कि एक 6 फुट का इंसान एक 6 इंच की लेडी के साथ किस तरीके से अफेयर रख सकता है। तो ये सारा जो है लिलीपुट का है। और ब्लेफेस्क्यू वो जाता है लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर उसको जो है क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी जो है गुलिवर के खिलाफ चल रही है। तो ही रीच टू ब्लेफेस्क्यू एंड द किंग ऑफ ब्लेफेस्क्यू दे यू कैन से रिसीव्ड हिम वार्मली, वेलकम्ड हिम वार्मली एंड दे हेल्प्ड हिम टू मेक अ बोट एंड देन बाय हुक और क्रूक ही रीच टू हिज नेटिव लैंड। और वापस आते आते वो क्या करता है, अपनी जेब में कुछ गाय भैंस वहाँ के छोटे छोटे जो है वो जेब में डाल के ले आता है एज अ टोकन, एज अ जो है। और जब रास्ते में आता है तो उन लोगों को अपनी कहानी सुनाता, शिप में उनको यकीन नहीं होता, तब वो निकाल के वो अपने जो है गाय भैंस उनको दिखाता है। तो ही रीच टू हिज होम एट लास्ट। ये लिलीपुट था। लिलीपुट के बाद जो अपने घर पहुंचता है, लेकिन ये इंसान ऐसा घर रह ही नहीं सकता है। तो सेकेंड टाइम अगेन ही वेंट टू द सी, दिस टाइम एज अ सर्जन। पहले असिस्टेंट सर्जन था, अब एज अ सर्जन जाता है। फिर वही होता है, शिपरैक होता है, स्टॉर्म होता है, सर्वाइव करता है। एंड ही लैंडेड हिमसेल्फ ऑन एन आइलैंड एंड दिस टाइम द नेम ऑफ द आइलैंड इज ब्रोबडिग्नैग। ठीक है, अब उल्टा हो गया है। लिलीपुट में वो 6 फुट का था, बाकी लोग 6 इंच के थे। अब यहां पर जो बाकी के लोग हैं उनके सामने वो 6 इंच का है, यानी कि इतने लंबे चौड़े लोग हैं। तो व्हेन ही वोक अप, ठीक है, ही सो दैट कि अ ह्यूज फिगर, ही वाज अ फार्मर, काट रहा है कुछ, और वो उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो वो भागने की कोशिश कर रहा है। एट लीस्ट ही कोट हिम। अब वो देखता है ये क्या चीज है, उसको हाथ में उठा के और उसको अपने घर ले आता है। ठीक है, एंड द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ दैट फार्मर इज ग्लबडबड्रिब। नाम बड़े अजीबोगरीब है, इसमें स्पेलिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है क्योंकि ऐसे ही नाम। ग्लबडबड्रिब ये उसकी डॉटर है जो उसकी नर्स बनती है, केयर टेकर बनती है। अब देखिए यहां एक तो साइज में उल्टा है, दूसरा वो लोग कैसे थे, लड़ने वाले थे लिलीपुटियन। ये लड़ने वाले लोग नहीं है, इतना बड़ा साइज होने के बावजूद भी लड़ते नहीं है, बट ये पैसा कमाना जानते हैं। जो ये फार्मर इसको लेके आता है, देखता है कि ये तो बहुत अजीबोगरीब प्राणी है। इफ ही विल सो हिम इन द विलेजेस तो ही कैन अर्न मनी, क्योंकि जो ब्रिटिश जो हैं, जो इंग्लिश पीपल हैं, वो किसी भी चीज से पैसा कमाना बहुत अच्छे से जानते हैं। अब वो उसको लेके जाता है, जगह जगह दिखाता है, लोगों को शो करवाता है उससे, एंड अर्न मनी। और जहां भी जाता है, जो ग्लबडबड्रिब है उसके लिए एक बॉक्स बनाया है, उस बॉक्स में उसको टांग के लेके जाता है। इसके साइज का आप अनुमान यहां से ये लगा सकते हो कि जो छोटा बच्चा है इस घर में 1 साल 1.5 साल का होगा, वो गुलिवर को कोई खिलौना समझ के उठा के उसका सिर अपने मुंह में डाल लेता है। अब देखिए 1 साल का बच्चा एक 6 फुट के इंसान को उठा के अपने मुंह में डाल लेता है, तो उनका साइज कितना बड़ा होगा, अमेजिंग। और देखिए इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, आप देखोगे तो उनके हर एक जो है लिम्ब का, ऑर्गन का बहुत अच्छे से डिटेल दिया, स्पेशली फॉर वीमेन। उनका जो है कि जो ब्रेस्ट का खासकर उसने मेंशन किया है, इतने मीटर का क्या बोलते हैं रेडियस है, वगैरह वगैरह, जो मैथमेटिकल टर्म्स है बहुत डिटेल में दिया है। अब ग्लबडबड्रिब जो उसकी नर्स बन जाती है, वो पैसे कमा रहा है। लास्ट में किंग को पता चलता है, किंग उसको अपने पास बुला लेता है। देन देयर इज अ डायलॉग बिटवीन किंग एंड क्या बोलते हैं इसको, गुलिवर। एक खासियत गुलिवर की जो है, चारों ही बुक्स में आप देखोगे, बहुत जल्दी लैंग्वेज सीख जाता है। जहां भी जाता है उनकी लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख जाता है। और वहां पर जो है उसको एक फ्लाई को, मक्खी को मारने के लिए अपने स्वॉर्ड का यूज करना पड़ता है, वगैरह वगैरह, इस तरीके से काफी डिटेल में। तो यहां से जो हमने याद रखना हो, क्या रखना, ग्लबडबड्रिब का नाम याद रखना है। और ये सेकंड वॉयज थी, वॉयज टू ब्रोबडिग्नैग।
यदि पूरा डिटेल में बताएंगे तो इसी में लेक्चर निकल जाएगा। और जो किंग और गुलिवर के बीच डिबेट होती है वहां पर कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा है और उनका कैसा, जहां पर वो वाइसिज हैं वहां मेरिट है, वहां पर मेरिट है तो वहां पर वाइसिज है, इस तरीके से डिटेल में उनका होता है। अब जो तीसरे नंबर का होता है दैट इज वॉयज टू लपूटा, ठीक है, बालनी बाबी एंड जापान। तीसरी बार भी ऐसे ही फिर शिपरैक हो जाता है, यहां चला जाता है। अब यहां पर क्या है, जो ये लपूटा है इट्स अ फ्लोटिंग आइलैंड, ये फ्लोटिंग आइलैंड है, कोई एक चीज है वो हवा में तैर रही है और गुलिवर देखता है कि एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो स्टेबल होती है, रुक जाती है और उसका एक सिरा जमीन के काफी करीब होता है, वहां से लोग ऊपर चढ़ते हैं उतरते हैं, इस तरीके से काम चल रहा उनका, बहुत अजीबोगरीब है। और गुलिवर भी वहां चला जाता है। फिर वहां क्या देखता है गुलिवर, हर चीज जो है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, उनके खाने का, पीने का, रहने का जो स्टाइल है, जो कपड़े हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, उनके जो सबके साइज किस तरीके से हैं, मैथमेटिकल, जैसे कोई ट्रायंगल है, कोई रेक्टेंगल है, इस तरीके से है। और मैथ्स और म्यूजिक दो चीजों में खास इंटरेस्ट उनका देखा गया और दोनों ही चीजों में बहुत वीक है। एक्चुअली इट्स अ स्टायरिकल वाक है ना, दोनों ही चीजों में बहुत ज्यादा वीक है। जब गुलिवर के कपड़े सिलने के लिए इतना मतलब काफी डिटेल में दिया है कैसे उसका मेजरमेंट होता है और इतने गंदे कपड़े सिल के आते हैं जो उसको बिल्कुल आउटफिट नहीं होते हैं। तो इस तरीके से एक तो ये फ्लोटिंग आइलैंड है और यहां वो जाता है, फिर उसके बाद बालनी बाबी, उसके बाद खासकर जो यहाँ का जो इंपॉर्टेंट है वो है एकेडमी। वो जिस एकेडमी में जाता है सो मेनी प्रोजेक्ट्स वर गोइंग ऑन, और वो प्रोजेक्ट्स क्या है, किस तरीके के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मतलब फुलिशनेस दिखाई गई है। एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि ऊपर से मकान कैसे बनाना शुरू करें, हाउ इट इज पॉसिबल। एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि जो ह्यूमन एक्सक्रेटा है, जो हम वेस्ट जो है निकलता है बॉडी से, उसको दोबारा से खाने में तब्दील कैसे करें। और एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है कि वहां खेत है, खेत को जोतने के लिए जगह जगह पे खाना दबा दिया जाता है और फिर जो डॉग्स हैं, हाउंड्स हैं, वो उसको खोदते हैं, वो खाना निकालने इन दिस वे वो प्लोइंग चल रही है। अगेन इट्स अ फुलिशनेस। बुक्स लिखने के लिए वगैरह वगैरह काफी इस तरीके के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सारे के सारे प्रोजेक्ट फ्यूटाइल हैं, यूजलेस है। तो यहां से पता चलता है कि किस तरीके के लोग हैं। उसके बाद वो जाता है, एक टर्म आती है इसमें, लोगाडो जब जाता है, स्टर्डलबर्ग कुछ ऐसा ही है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है। स्टर्डलबर्ग ये कौन है, ये ऐसे इंसान हैं दोज हु आर इमोर्टल, दे नेवर डाई, मरते ही नहीं है कभी भी, ठीक है, कुछ तो ऐसे इंसान। और ये जो स्टर्डल, कुछ और जो मैजिशियंस वहां पर मिलते हैं, वहां पर क्या है कि इस तरीके का सिस्टम है कि आप किसी को भी इंसान को 24 घंटे के लिए अपने पास बुला सकते हैं, 24 घंटे के लिए। यानी कि सपोज यू वांट टू मीट होमर, होमर को 24 घंटे के लिए बुला सकते हो और दूसरी बार बुलाने के लिए कम से कम 3 महीने का गैप चाहिए। कमाल की चीज है। यानी कि यू कैन सी द एंसेंट्स। अभी हमारा मन करे कि अकबर को देखना है तो हम बुला सकते हैं 24 घंटे के लिए, जो गुलिवर ट्रैवल में मेंशन है। तो ये किस किस से मिलता है, पहले सबसे पहला इंसान जो अलेक्जेंडर द ग्रेट से मिलता है, इस तरीके से बुलाते हैं। उनका जो एंट्री करने का तरीका है, जमीन पे लेट के फर्श को चाटते हुए किंग तक जाना है, वगैरह वगैरह वगैरह, काफी डिटेल में ये है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इफेक्टिव है दैट इज द लास्ट वॉयज टू कुछ ऐसा स्पेलिंग है, ये वाई भी है यहाँ पे, होइनमस ये है। अब यहां पर जब वो पहुंचता है प्रोसेस वही रहता है, शिपरैक होगा, ये अकेला बचेगा, जाएगा वगैरह वगैरह। तो यहां पर वो क्या देखता है, हियर ही सो ह्यूमन लाइक फिगर्स, हमारे जैसे इंसान है,
दे वर टोटली न्यूड, ठीक है, और वो क्या करते हैं, उसको जो है उसके ऊपर एक्सक्रेटा फेंकते हैं अपना। अब ये काफी कि व्हाट इज हैपनिंग देयर, एंड देन ही सो अ हॉर्स, एक हॉर्स आता है, एंड एज दोज ह्यूमन लाइक क्रीचर्स सो दैट हॉर्स दे रैन अवे फ्रॉम देयर। अब then the second horse also came there and both the horses they shook their roof, क्या बोलते हैं इसको जो है, hoof। जैसे हम हैंडशेक करते हैं तो वो अपने जो है टांगे मिला रहे हैं आपस में, and they were talking just like human beings and it was a surprise for him but again the language was foreign, language was alien to him। अब उसको समझ नहीं आ रहा है, बट इंडिकेशन से समझ आता है कि the horse was saying कि you please follow me, and he followed the horse। And then they reached a huge building and there were again so many horses and so many those human like creatures also, and he thought that कि यहाँ पर कोई उसका मास्टर होगा, जरूर उससे मिलवाने के लिए लाया है। And when he went inside the house he found a mayor। मतलब क्या है कि वहां पर जो घोड़े हैं वो तो इंसानों की तरह बिहेव करते हैं, इंटेलिजेंट वगैरह वगैरह, और जो हम जैसे लोग हैं, इंसानों जैसे लोग हैं, वो सारे के सारे जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। जो ह्यूमनस है ये कौन है, ये हॉर्सेज हैं, और जो दूसरे हम जैसे लोग हैं वो है याहूज। कौन है, याहू। याहू अभी एक सर्च इंजन भी है, पता नहीं गुलिवर से इन्होंने ये वर्ड उठाया हो स्विफ्ट से, तो ये याहू हैं। और यहां देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड का सिस्टम है। जो हॉर्सेज हैं, हर हॉर्स यानी कि कपल जो है मेयर और हॉर्स, मेल फीमेल, उनको 2 बच्चे पैदा करने हैं। इत्तेफाक से दोनों मेल हो जाएं या दोनों फीमेल हो जाएं तो वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, एक मेल दे देते हैं, फीमेल लेते हैं, एक फीमेल दे देते हैं, मेल ले लेते हैं। कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, एक मेल एक फीमेल। दे डाई विद देयर नेचुरल डेथ, एज है जो उसके ऊपर ही जो है 99 हॉर्सेज मर रहे हैं। और दे आर फार अवे फ्रॉम मटीरियल यू कैन से वैनिटीज, क्योंकि उसमें एक जिक्र आता है एक जगह कि एक जो मेयर है जिसका हस्बैंड सुबह मरा है तो वो शाम को पार्टी एंजॉय कर रही है, उनको इस चीज का फर्क नहीं पड़ता है। इन चीजों से काफी ऊपर उठे हुए वो लोग हैं। और उल्टा है सिस्टम कि जो ह्यूमन फिगर है उनको जानवरों की तरह रखा जाता है खाने में, जो वो दे आर ईटिंग द फ्लैश, रो फ्लैश, और वो किस तरीके से, एंड दे आर लस्टी ऑल्सो। जो ह्यूमन क्रीचर हैं दे आर सोन लस्टी ऑल्सो, फीमेल। दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट जस्ट टू सीड्यूस गुलिवर, बट वो काफी सारी चीजें इसमें ऐसी होती हैं। पूरा बुक इट्स एन इंटरेस्टिंग बुक। ऐसा बोला जाता है कि जो गुलिवर ट्रैवल है ये कोर्ट से लेकर बच्चों तक पढ़ी गई, हर एक तबके ने इस किताब को पढ़ा। इट्स इंटरेस्टिंग। तो ये गुलिवर ट्रैवल था। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और ऐसा भी बोला जाता है कि लास्ट में जब वो ह्यूमनस विजिट करके आता है तो उसने काफी सारे घोड़े पाल लिए थे। गुलिवर को ऐसा लगने लगा था कि उसका वो जो स्विफ्ट है कि रियल लाइक यू कैन से आइलैंड्स ही हैड विजिटेड वगैरह वगैरह, इस तरीके से। अब देखिए इसके बाद जो इनका वाक है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अ शॉर्ट व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड। अ शॉर्ट व्यू of the present state of Ireland। ये जो है वाक उनका पब्लिश होता है, और ये उनका वाक जो है पब्लिश होता है वो 1727 में पब्लिश होता है। कब पब्लिश होता है? 1727। एंड इट वॉज एन अटैक ऑन आयरिश गवर्नमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हमें इतना ही पता करना। एक, पब्लिश्ड इन 1727। सेकेंड, इट वाज एन अटैक ऑन आयरिश गवर्नमेंट ऑफ, जो न्यू कोइनेज उनका है उसके ऊपर ये अटैक उनका रहता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट वाक है दैट इज मोडेस्ट प्रपोजल। कौन सा वाक है? द मोडेस्ट प्रपोजल। ये काफी इंपॉर्टेंट वाक है और ये पब्लिश होता है 1727-29 में। द मोडेस्ट प्रपोजल। अब ये प्रपोजल किस चीज के लिए है?
This book shows the utter poverty, the people who are living in utter poverty, कि how they are living, what kind of life they are living, and children are burden for them. और इस पूरी बुक में ये दिखाया गया कि किस तरीके से वो जो आयरलैंड में जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को किस तरीके से बचाया जा सकता है। उसके लिए बहुत ही मतलब ये शायद सबसे डायरेक्ट स्टायर आप इसको बोल सकते हो, अटैक बोल सकते हो। इसमें पूरा डिटेल में बताता है कि नाउ ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन जो है पॉपुलेशन आयरलैंड की उस टाइम वो बताता है। इतने में से करीबन इतने लोग, वो तो डेटा देता है साथ में, इतने लोग अटर पॉवर्टी में जी रहे हैं, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं। एक बच्चे को पैदा करने में एक साल में 2 सीलिंग वो खर्च बताता है, 3 सीलिंग 20 साल में 60 सीलिंग हो गया वगैरह वगैरह। इस तरीके से वो कहता है कि जो बच्चे एक बहुत अच्छा बिजनेस बन सकते हैं, उनको पाल के जो धनी लोग हैं उनको बेच दिया जाए, उनका फ्लैश कुकिंग होगी वगैरह इस तरीके से। और ये क्वेश्चन आया कि इसका थीम क्या है, नेट में क्वेश्चन आया। तो बच्चे जो हैं उनको किस तरीके से बेचा जा सकता है, यानी कि स्टायर है उन लोगों की गरीबी को दिखाने के लिए कि उनके ऊपर बच्चे बोझ थे, कितने सीलिंग लगते हैं, कितने सीलिंग वो कमा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इट्स अ वेरी डायर अटैक, स्टायर, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टायर, इट वाज द मोडेस्ट प्रपोजल। और वहाँ के लोगों के जो गवर्नमेंट है, जो लोग चला रहे हैं सिस्टम को, उनके ऊपर बहुत जबरदस्त अटैक है। पॉवर्टी स्ट्रिकन लोगों की जो क्या कंडीशन थी वो दिखाई गई है इस बुक के जरिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से, बहुत अच्छे से इसको करना। हमने यही क्वेश्चन आता है इसका बार बार कि जो बच्चों को बेचने की बात होती है वो किस बुक का थीम है, या ये पूछ लेगा इस बुक का थीम क्या है। द सेकेंड वन इज जर्नल टू स्टेला। एज आई हैव टोल्ड यू कि इस्थर जॉनसन कौन थी? शी वॉज द इलिजिटिमेट डॉटर ऑफ विलियम टेम्पल। अब उसको करीबन 3 साल का जो उनका डायलॉग रहा 1710 to 1713, दे एक्सचेंज लेटर्स, और उसका मेंशन इसमें है। ये स्टेला कौन है? इस्थर जॉनसन, the illegitimate daughter of William Temple. As I told you कि there was some liaison between them, and it is also said that कि they secretly married also. तो ये इसका थीम है। तो हमें जो है बस इतना ही इसके बारे में पता करना था। इसके बाद जॉनसन, क्या नाम इनका, सॉरी, स्विफ्ट जो हैं, ये इनके प्रोज वर्क थे। इसके अलावा पोइट्री भी लिखा इन्होंने, कुछ पोइट्री भी लिखा, और उसमें जो है 2-3 इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। Number 1 is a description of morning. It is also important poem written by Jonathan Swift. Description of city sower. ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्रैपियर्स लेटर, इट इज ऑल्सो एन अटैक ऑन गवर्नमेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट वाक है। और एक जो वाक इनका जो कई बार पेपर में पूछा गया है वो है ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट। क्वेश्चन यही आता है, हु इज द you can say author of on the death of Dr. Swift, and it is written by Jonathan Swift. बायोग्राफिकल अकाउंट है, इट इज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। यही क्वेश्चन आता है यहां से, तो इसको ध्यान में आपने रखना। जोनाथन स्विफ्ट का ही लिखा हुआ ये वाक्य है। तो इसके अलावा एक जो कोट आती है इनकी, I detest the animal called man, but I love John, Peter, etc. Means
As a general phenomena, he detests man, but as individual beings, he loves man. And in Pope, we found totally opposite. Pope hated, you can say, individuals, but love man in general. वो पोप में इसके जो है टोटली ऑपोजिट मिलेगा। तो ये थे जो है हमारे जोनाथन स्विफ्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो मैंने बीच बीच में आपको बताया किस तरीके से पूछा। एक बार आया था पेपर में कि जो गुलिवर ट्रैवल है उसका फोर्थ वॉयज कौन सा था, तो होर्मुस आंसर होगा। फर्स्ट लिलीपुट, सेकंड ब्रोबडिंगनेक, थर्ड बालनी बाबी, लगाडो, लपोटा और फोर्थ होर्मुस। इसके अलावा मोडेस्ट प्रपोजल से क्वेश्चन आया है, किस चीज का ये प्रपोजल है, थीम क्या है, बच्चों वाला जो मैंने बताया था, आयरलैंड की कंडीशन के बारे में बताया था। और इसके अलावा जो है जोनाथन स्विफ्ट से एक बार क्वेश्चन ये आया था कि उसकी जो केयर टेकर थी उसका नाम क्या था, ग्लबडब ड्रिब। गुलिवर से जो क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। द नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप Jonathan Swift as well as Alexander Pope both were the members of Scribner's group, क्या बोलते हैं, क्लब। ठीक है ना, जिसमें स्विफ्ट थे, पोप थे, गे थे, आर्बुनट थे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्क्रिबलर क्लब। अब जो जोनाथन स्विफ्ट ये क्या अलेक्जेंडर पोप है, ही वाज अ रोमन कैथोलिक और हाइट बहुत छोटी थी, डिफॉर्म्ड, ही वॉज डिफॉर्म्ड, एक जो है कुब्बड़ था, स्टूप, झुके हुए कुब्बड़ सा था इनके जो है बैक के ऊपर, डिफॉर्म्ड थे वो। और जो पोइटास्टर हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो इनकी क्रिटिसिज्म करते हैं और उसके बदले अलेक्जेंडर, क्या नाम इनका है, डॉक्टर जॉनसन बोलते हैं, इफ वी डोंट फाइंड पोइट्री इन पोप देन वेयर एल्स पोइट्री इज। तो वो काफी जो है प्रेज करते हैं इनकी पोप की। अब देखिए जो पोप है, ही वॉज अ पोइट, क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर। काफी सारी क्वालिटी जो है पोप के अंदर है। अभी पोप की बात करें तो इनका जो पहला जो इंपॉर्टेंट वर्क है पोप का, वो है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। एसे ऑन क्रिटिसिज्म published in 1711। एसे ऑन मैन एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट। और इनका जो आता है क्वेश्चन वो ये करके आता है, पब्लिशिंग ईयर पूछते हैं। जो एसे ऑन मैन है दैट वाज रिटन इन 1711 एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 एंड एसे ऑन मैन रिटन इन 1733-34, बेसिकली 34 ही लिखते हैं। तो ये एक तो डेट आपने दोनों का याद रखना है। एसे ऑन मैन पहले लिखा गया, एसे ऑन क्रिटिसिज्म पहले लिखा गया और मैन बाद में लिखा गया। अब जो एसे ऑन मैन है इसमें जो है 4 वो चैप्टर्स में इसको डिवाइड करता है। इन फर्स्ट पार्ट यू कैन से ही टॉक्स अबाउट टेस्ट। इन दिस एसे ही इज टॉकिंग अबाउट द मेरिट्स क्वालिटीज ऑफ अ क्रिटिक। क्रिटिक के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छा क्रिटिक बनने के लिए, और साथ में पोइट को भी जो है क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। बेसिकली जो फंक्शनिंग ऑफ क्रिटिक है उसके ऊपर ही रहता है। अब देखिए, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि ऑल द पोइट्स ऑफ न्यू क्लासिकल एज दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय होरेस, स्पेशली होरेस एंड जुवेनाइल। स्टायर की बात करें, होरेस एंड जुवेनाइल। अब होरेस जो वर्क है दैट इज आस पोइटिका, and if we go through Ars Poetica we find 3 parts are there, and there also Horace also talks about, मतलब he teaches us how to write poetry। यही तो उसमें कि पोइट्री लिखी किस तरीके से, थीम क्या होना चाहिए, लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, और जो है थीम सिलेक्शन कैसे करें, एवरीथिंग ही मेंशन इन डिटेल। एंड हियर ऑल्सो उससे काफी मिलता जुलता चीजें जो मिलती हैं। टेस्ट की बात करता है कि जो टेस्ट है वो जेन्युइन टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट का मतलब यहां पर कि उसका जो सिलेक्शन है थीम का, चीजों को देखने का जो नजरिया है। और साथ में वो ये भी बोलते हैं क्रिटिक के लिए कि क्रिटिक को एक तो चीजों को पार्ट्स में नहीं देखना है, होल।
होल में देखना, चीजों को पार्ट्स में नहीं देखना है। और क्या बोलते हैं, बाकी किसी भी चीज से उसको इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, जो आगे चल के हम न्यू क्रिटिसिज्म में देखते हैं ना जब थियरी की बात करेंगे। तो नंबर 1 तो टेस्ट की बात करता है और ये कहता है कि एक जो है क्रिटिक में टेस्ट जो है रेयर मिलता है। जो क्रिएटिविटी है, जिस तरीके से जो क्रिएटिंग स्किल है, दैट इज रेयर इन पोएट, इन द सेम वे टेस्ट इज रेयर इन क्रिटिक। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के जो है पोएट पे चलते हैं। तो पहला जो पार्ट है दैट इज टेस्ट, टेस्ट की बात करता है, दैट इज रेयर इन क्रिटिक। गुड क्रिटिक होने के लिए उसका टेस्ट जो है होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही टॉक्स अबाउट, यू कैन से, द रिलेशन ऑफ आर्ट एंड नेचर, रिलेशन ऑफ आर्ट एंड नेचर, and we are to understand this word here, nature. Nature does not mean the same as meant as it had a meaning for William Wordsworth. ऐसा नहीं है। Here nature is totally different that of from Wordsworthian nature. यहाँ पर जो नेचर है वो ह्यूमन नेचर की बात हो रही है, और यहाँ पर जो क्लास है जो पोइट्री का उसकी बात हो रही है। तो वो बोलते ना जो नेचर है, नेचर का मतलब इफ यू वांट टू कॉपी नेचर, कॉपी एंसेंट्स, होमर स्पेशली। तो ये नेचर की। और आर्ट, एज आई टोल्ड यू कि जैसे आस पोइटिका में होरेस हमें बता रहे हैं, ठीक उसी तरीके से पोप हमें यहां पर आर्ट और नेचर का जो रिलेशन है, नेचर जो उसका अपना एक जेन्युइन ट्रेट है, आर्ट जो हम सीखते हैं। देखिए दो चीजें ना, उसमें भी यही चीज है, कुछ चीजें हमारे अंदर इनबिल्ट होती हैं, कुछ चीजों को हम सीख सकते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक अच्छा पोएट या अच्छा क्रिटिक पैदा करता है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो ये नेचर जो है, ये नेचर की बात वर्ड्सवर्थियन नेचर बिल्कुल नहीं है, इसको आप ध्यान में रखोगे। और जो अभी जो लास्ट के जो टू हैं, लास्ट का जो पार्ट है दैट इज रूल्स, एंड हियर ही tells about the importance of ancients if we want to copy nature, copy Homer। यानी कि हमारे जो एंसेंट पोएट है उनको कॉपी कीजिए, वहां से चीजें लीजिए, वहां से सीखने की बात हो रही है। तो होमर की यहां पर बात वो करता है। टू कॉपी नेचर इज टू कॉपी एंसेंट्स और होमर स्पेशली। ये लाइन भी जो है काफी पॉपुलर है। और जो प्रॉपर स्टडी का जो थीम बताता है दैट इज मैन, प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। जो ये भी लाइन जो है उनमें अपीयर होती है, एक वाक्य में उनके एक जगह अपीयर होती है, प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। तो यहाँ पर और वहां पर जब हम मैन की बात करेंगे, ऐसे मैन की बात करेंगे, तो हैमलेट का मैन का जो कॉन्सेप्ट था कितना हाई स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है रेनेसां का मैन का, और यहाँ तक आते आते उस कॉन्सेप्ट में कितना शिफ्ट आ गया था, वो चीजें भी देखने को मिलेंगी। तो ये एसे ऑन क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1711, जहाँ पर क्रिटिक्स की मेरिट्स की बात करता है, क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, उसका टेस्ट, उसका जो है आर्ट, नेचर का समझ, नेचर मतलब ह्यूमन नेचर जो है, रूल्स जो सेट किए हैं एरिस्टोटल, होमर, जो पुराने हमारे जो है क्लासिक हैं, उनके जो रूल सेट किए हैं उनको हमने कैसे फॉलो करना है। क्योंकि यहाँ पर करेक्टनेस, पोइट्री का जो करेक्टनेस है वो वाला ऑप्शन यहाँ पे रहता है, वो वाला कॉन्सेप्ट रहता है। तो पोइट्री शुड बी रिटन इन अ वेरी क्लासिक लेवल, नियो क्लासिकल एज इसको बोलते हैं। जो क्लासिकल था उसका नियो, यानी कि उसको इमिटेट किया गया है, दैट्स व्हाई दिस पीरियड इज नोन एज नियो क्लासिकल एज। तो ये कॉन्सेप्ट है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। इसकी समरी भी आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट वर्क है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। अब एसे ऑन क्रिटिसिज्म के बाद यदि हम बात करें, देखिए यहां पर कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जो जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत बार आता है। टू err is human, to forgive divine।
ये अलेक्जेंडर पोप का कोट है, लिटल नॉलेज इज डेंजरस। डेंजरस थिंग, ये भी कोट किसका है? ये भी कोट जो है हमारे अलेक्जेंडर पोप का है। और एक और इंपॉर्टेंट है, फॉर फूल्स रस वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड। ये भी कोट किसका है? ये भी कोट अलेक्जेंडर पोप का है। कई बार इस तरीके से जो है पूछ लिया जाता है, तो इस चीज का भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इनका जो मास्टरपीस है, दैट इज रेप ऑफ द लॉक। First time published in 1712 and then 1714. In 1712, there were only 2 cantos and 334 lines. In 1714, 5 cantos, 794 lines. और यहां पर जो है जो मशीनरी है, मशीनरी मीन्स इसको बोलेंगे सुपर नेचुरल मशीनरी। इट वॉज एडिड एंड इन 1717 क्लारिसा's स्पीच एडिड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट द बैकग्राउंड, जो उसका कॉन्टेक्स्ट रहा है। सिर्फ अभी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, थीमेटिक की नहीं बात कर रहे हैं। 1712 में पब्लिश होती है, 2 कांटोज होते हैं, 334 लाइंस होती हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि जो टी.एस. एलियट का वेस्टलैंड है उसमें कितनी लाइंस है? 433 लाइंस है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब क्या वेस्टलैंड का पूछा जा सकता है, तो रेप ऑफ द लॉक का क्यों नहीं पूछा जा सकता? बड़ा वाक है ना। उसके बाद 5 कांटोज, 794 लाइंस, 1770 में क्लारिसा की स्पीच को ऐड कर दिया गया था। 2 से 5 जब कांटो हुए, उसमें सुपरनैचुरल मशीनरी, जो रोसिक्रूसियन जो मिथोलॉजी है वहां से जो लिया गया है, रशियन क्या बोलते हैं उसको, ग्रीक से, तो वो वाला निम्फ है, सिम्फ है, नोम है, एरियल है, ये सारे के सारे वहां पर ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये था। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेप ऑफ द लॉक इज अ मोक एपिक। मोक एपिक, वी नो वेरी वेल what epic is and this is mock epic। सुना होगा आपने मोक टेस्ट सीरीज वगैरह। तो यहां पर मोक एपिक है, मतलब क्या है, जो थीम है वो ट्रिवियल है, बहुत लो लेवल का है, क्योंकि एपिक में तो थीम और लैंग्वेज दोनों स्टैंडर्ड का चाहिए, स्टाइल। लेकिन जो स्टाइल है वो एपिक स्टाइल है, ग्रैंड स्टाइल है, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ वर्क इज नोन एज मोक एपिक, जिसका थीम बहुत लो लेवल का हो और उसको जो पूरा बढ़ा चढ़ा के पूरे ग्रैंड स्टाइल में बताने की कोशिश की गई हो, दैट इज नोन एज मोक एपिक। रफली सिंप्लीफाई करके यदि बताऊं तो, किताब की डेफिनेशन पे ना जाए तो ये मोक एपिक होता है। तो इट्स अ मोक एपिक एंड इट वाज द एज ऑफ मोक एपिक। मोक एपिक लिख, क्योंकि मैंने जब ड्राइडन को हमने डिस्कस किया था कि वो अनहीरोइक एज थी, हीरोइक कपलेट यूज, हीरोइक प्लेज लिखे गए, तो लेकिन एज कैसा था? अनहीरोइक था। ठीक इसी तरीके से एपिक का भी एज नहीं है, एपिक नहीं लिखी गई, मोक एपिक लिखी गई है। तो रेप ऑफ द लॉक इज अ मोक एपिक पोएम। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हियर, इट्स अ मोक एपिक पोएम पब्लिश्ड इन 1712 इन 2 कांटोज, 1714 5 कांटोज। इसके बाद अब देखिए इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 फैमिलीज। एक तो है लेडी
अरेबेला फामोर और दूसरे हैं जो है लॉर्ड पीटर। दो फैमिलीज के बीच का जो डिस्प्यूट है वो इनसे परमिशन लेके उसको इस पोयम का शेप दिया गया है। अब होता क्या है यहां पर जो पोयम में वो ये है वो बेलिंडा है। बेलिंडा इज अ ब्यूटीफुल वैली, ब्यूटीफुल गर्ल, फ्रेंच इंपैक्ट है। अब ये जो पोयम है इट शोज द कल्चर ऑफ लंदन ऑफ दैट टाइम ऑफ इलीट ग्रुप, जो इलीट हैं, जो अपर स्ट्रेटा है, रिच पीपल है, हाउ दे लिव। स्पेशली यहां पर फीमेल की बात हो रही है, उसके बाद मेल की भी होगी लेकिन फीमेल के ऊपर अटैक जाता है। बेलिंडा का जो तरीका है रहने का, व्हेन सी वोक अप, उठती, वेक्स अप, जब सुबह उठती है तो सबसे पहला ध्यान क्या होता है, टॉयलेट बॉक्स के ऊपर होता है। यानी कि पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो कैसी है, आर्टिफिशियल लाइफ है। और इनके एक शूटर हैं, ये जॉन पीटर हैं। अब वो इनको चेज करते हैं और अब बात नहीं बन रही है तो रिवेंज के लिए क्या करते हैं, जॉन पीटर जो है ही डिसाइडेड टू जो है कट बेलिंडाज लॉक, रेप ऑफ द लॉक, राइप रेप, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। लॉक जो बालों की जो लट होती है उसको लॉक बोलते हैं। और वो किस तरीके से उसको कट करने के लिए प्लान बनाता है और जो सुपरनैचुरल मशीनरी है वो उन लॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से प्रोटेक्शन लगाते हैं। जैसे हमने पैराडाइज लोस्ट में था कि जब ईडन गार्डन में सैटर्न को आना है तो उसको रोकने के लिए प्रोटेक्शन लगाई है, ठीक इसी तरीके से ऐसा ही प्रोटेक्शन लॉक के लिए देखा जाता है। हालांकि इट्स मोक एपिक, थीम तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से वहां पर कैसे क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। बेलिंडा जो है शी वॉज इन्वाइटेड एट हैम्पटन कोर्ट टू प्ले ओमर, ये कार्ड गेम है। ओमर से याद आया कि देखिए ये नहीं था कि ये फर्स्ट एपिक था, वहां पर पोप के पास कुछ ऑलरेडी मोक एपिक्स अवेलेबल थे, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। यहां ओमर से मुझे याद आ गया, होमर का लिखा हुआ एक तो होमर्स बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस, रिटन बाय होमर। तो ये जो है अभी थोड़ा सा मोक एपिक की बात करें तो क्या क्या चीजें उनके पास अवेलेबल थी वहां पर। और उसके बाद है जो है अलेसैंड्रो टोसानी, रेप ऑफ द बकेट, और इसके बाद है विडाज गेम ऑफ चेस। और ये वो वर्क है गेम ऑफ चेस फ्रॉम वेयर द गेम ऑफ ओमर हैज बीन टेकन बाय पोप, गेम ऑफ ओमर। दिस गेम ऑफ ओमर हैज बीन टेकन फ्रॉम विडाज गेम ऑफ चेस। तो इन तीन का भी हमें पता होना चाहिए, होमर का और टोसानी, अलेसैंडर टोसानी और विडाज गेम ऑफ चेस। ये मॉडल उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल थे मोक एपिक के। अब बेलिंडा को हैम्पटन कोर्ट बुलाया गया है ये खेलने के लिए, ओमर, एंड देयर जॉन वॉज ऑल्सो ऑलरेडी प्रेजेंट एंड ही हैड प्लान टू कट द लॉक ऑफ बेलिंडा। अब वहां से जो सुपरनैचुरल मशीनरी की हमने बात की थी, सुपरनैचुरल मशीनरी, उसमें क्या क्या है, सिफ है, निफ है, नोम है और जी एरियल। ये सुपरनैचुरल मशीनरी हमारी वहां पर है। सिफ
जो एयर से रिलेटेड हैं, नोम जो वाटर से रिलेटेड हैं, जो लैंड से रिलेटेड हैं, और एरियल ये एक कैरेक्टर जो शेक्सपियर में भी अपीयर होता है टेम्पेस्ट में। ये वाले वहां पर हैं सुपरनैचुरल मशीनरी। और इसमें बात करें यदि हम जो सिम्फ वगैरह हमने लिखा है उसमें यदि हम बात करें तो इसमें एक तो ब्रिलियंट है, ये सिम्फ है, ब्रिलियंट है, अमरियल और मॉन्टमिला और एरियल खुद एक कैरेक्टर हैं। तो ये कैरेक्टर्स हैं, इनकी ड्यूटी लगी है, इनकी ड्यूटी लगी है। अब जब वो पीटर उसकी लोक को काटने वाला होता है उस सीजर के साथ, और सीजर के लिए वर्ड क्या यूज हुआ है, ग्लिटरिंग फोरेक्स। तो एक जो है जो सिम्फ है वो ट्राई करती है उसको रोकने के लिए, और वो उस सीजर के बीच में भी आ जाती है एंड इट कट इनटू 2 पार्ट्स। बट ये तो सुपरनैचुरल, अगेन इट यूनाइटेड। लेकिन होता क्या है कि लोक तो चली गई है, लोक तो कट गई है, और वो लोक जो है लास्ट में जाके स्काई में कॉन्स्टलेशन स्टार बन जाती है। अ ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज कॉन्स्टलेशन। ये क्वेश्चन ही आया था शायद पिछले नेट में आया या पिछले से पिछले में आया था कि लास्ट में लोक का क्या होता है, तो इट टर्न्स इनटू अ स्टार। एक और क्वेश्चन एक बार नेट में आया था कि व्हाट्स द नेम ऑफ द बेलिंडाज डॉग, और वह सोक, ये बेलिंडा का डॉग है। सोक जो है बेलिंडाज डॉग है। तो ये रेप ऑफ द लॉक था, मोटी मोटी चीजें जो रेप ऑफ द लॉक की मैंने बताने की कोशिश की। समरी आप पढ़ सकते हैं अच्छे से डिटेल में। तो ये था आपका रेप ऑफ द लॉक। अब रेप ऑफ द लॉक के बाद यदि हम बात करें तो उन्होंने एक एलिजी लिखा, और एलिजी का टाइटल है एलिजी टू द मेमोरी ऑफ अनफॉर्चुनेट लेडी। एलिजी टू द मेमोरी ऑफ अनफॉर्चुनेट लेडी, पब्लिश्ड इन 1770। एलिजी सॉरी टू द मेमोरी ऑफ an unfortunate lady इट्स ऑल्सो अ ग्रेट पोएम। और एक और इनकी पोएम है, ये भी इनका इंपॉर्टेंट पोएम है उसी टाइम का, और ये पब्लिश होती है 1717। तो ये दो जो पोएम्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट पोएम्स इनकी हैं, इसको भी हमने ध्यान रखना है। और इसके बाद का जो बड़ा वाक आता है उनका, वो है एसे ऑन मैन। कौन सा वाक आता है, एसे ऑन मैन। 1734, 33, 34, 34 ही मानते हैं। 4 एपिसल्स, ठीक है ना। और ये जो 4 एपिसल्स हैं लिखे गए हैं, और ये जो डेडिकेट किया गया है, एड्रेस किया गया है, एड्रेस्ड टू सेंट हेनरी विस्काउंट ऑफ बोलिंगबोक। ठीक है ना। अब इसमें जो 4 ऐसे हैं, पहला जो है दैट इज रिलेटेड टू मोरल्स एंड कैरेक्टर ऑफ मैन। सेकेंड वन इज कैरेक्टर ऑफ वीमेन। और जो लास्ट के 3 और 4th एसेज हैं वो रिचीज के ऊपर हैं, ठीक है। और इसमें 2 पोर्ट्रेट खासकर जो पूछे जाते हैं वो अपीयर होते हैं। उसमें एक तो सरबेलम एंड द सेकेंड वन इज टिमोन।
मतलब इन दो की हम बात कर रहे हैं, एसे नंबर 3rd and 4th। तो यहां पर वो है प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। तो नो देन thyself, नॉट गॉड टू स्कैन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो अपीयर होती है यहां पर। और यहां का जो मैन का कॉन्सेप्ट है, वो जो रेनेसां का मैन का कॉन्सेप्ट था, वो उससे काफी जो है डाउनग्रेड हो गया है। तो ये एसे ऑन मैन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बनता है, बालाम की बात हुई है, टिमोन की बात हुई है, चैप्टराइजेशन की बात हुई है। इसके बाद जो है एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज एपिसल टू अर्बुनट। ये कौन है? क्लोज फ्रेंड ऑफ पोप। अब देखिए लास्ट में एलिनेशन के शिकार पोप हो गए थे। रीजन, गे की डेथ हो गई थी, अर्बुनोट की डेथ हो गई थी, स्विफ्ट की डेथ हो गई थी, इनके जो फ्रेंड्स थे, आसपास के लोग थे, उनकी डेथ हो गई थी। क्रिटिक्स इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। और वहां पर जो है इस तरीके से 1734 में ये पब्लिश होता है। यहां से 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछी जाती है। एक, इसमें एक पोर्ट्रेट है दैट इज एटिकस। ये एटिकस कौन है? ये एडिसन है। जिस तरीके से जो सिडवेल और ड्राइडन की राइवलरी थी, ठीक उसी तरीके से यहां पर एडिसन, हार्वे है, एडिसन है, थियोबाल्ड है, कोलिशिबर है, इन सब के साथ जो है वो राइवलरी रहती है पोप की। और पोप बोलते हैं खुद कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि हम गॉड से नहीं डरते, पोप से डरते हैं, क्योंकि इतना जबरदस्त स्टायरिस्ट थे, स्टायर करते थे। तो ये हमने याद यहां से रखना। इसमें जो है एक हमारा है फोपो है और सोफो, सॉरी बुफो है। ये वाले, ये सोफो जो है ये हार्वे के लिए यूज किया गया है। एक तो मेन जो क्वेश्चन आता है वो एडिसन से ही आता है, एटिकस। एडिकस किसका पोर्ट्रेट है? वो एडिसन का है। तो ये एसे ऑन मैन इंपॉर्टेंट है। सॉरी, एपिसल टू डॉक्टर आर्बुनट। इसके बाद एक और बड़ा वर्क, वो है द डंसियड। जो डंसियड है, ये जो मैक फ्लैकनो लिखा था ड्राइडन ने, उसकी जो है याद ताजा करवाता है। इट इज ऑल्सो मोक हीरोइक पोएम पब्लिश्ड इन 1734। ये भी यहां पर भी जो गोडेस ऑफ डलनेस है वो सिलेक्ट करती है, जो अभी मैंने नाम मेंशन किए, थियोबाल्डी है, सीबर है, एडिसन है, जो है हमारे जो भी पोइट हैं जिनको डिसलाइक करते हैं पोप, उनके लिए। तो डंसियड। अब ये जो है खासकर ये जो है पोएम जो डिजाइन की गई थी टू रिडिक्यूल एम्ब्रोस फिलिप्स पेस्टोरल, इसको खासकर डिजाइन की गई थी। और इसमें जो जिन लोगों के ऊपर उसको अटैक करना था वो अटैक करते हैं, डायरेक्ट अटैक करते हैं डंसियड में। और पोप ने भी पेस्टरल्स लिखे, द पेस्टरल्स, पब्लिश्ड इन 1709। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके जो है पेस्टरल्स रहे हैं। अब इनके बाद और इनकी कुछ पोएम्स थी जो शॉर्ट पोएम है, जिसमें 2 पोएम्स का खासकर नाम लेंगे। एक तो है विंडसर फॉरेस्ट और दूसरा है ओड ऑन सॉलिट्यूड। अब यहां ये वो पोएम है, और ये दोनों ही मिला लें, जहां से पता लगता है कि भाई हाँ, अब धीरे धीरे चीजें जो है थोड़ा सा जो लंदन से वो थोड़ा सा पेस्टरल रूरल एरिया की तरफ दिखाई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पोप एक रोमांटिक पोएट थे। ये वो पोएम है जहां से बहुत ही फेमस लाइन जो बहुत बार पूछी भी गई है वो आती है, हैप्पी द मैन हुज विशेज एंड केयर। ये नोट कर सकते हो आप, हैप्पी द मैन हुज विशेज एंड केयर,
पैटर्नल acres bound, happy the man whose wishes and care, paternal acre bound or content to breathe his native air, content to breathe his native air in his own ground. ये बहुत फेमस लाइन है जो ओड ऑन सॉलिट्यूड में अपीयर होती है, जहां पर पोप बताने की कोशिश करते हैं कि सबसे खुश इंसान कौन है। तो ये उनकी इंपॉर्टेंट पोएम थी। एक और जो माइनर पोएट है वो जॉन गे हैं। खासकर इनका बेगर्स ओपेरा, यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो बेगर्स ओपेरा है वो किसका वर्क है। इट्स इंपॉर्टेंट, क्वाइट इंपॉर्टेंट इट इज। और उसके बाद एक इनका जो है रूरल स्पोर्ट्स, एक तो बेगर्स ओपेरा और दूसरा है रूरल स्पोर्ट्स, ये वाला इनका बहुत है इंपॉर्टेंट है। और शेफर्ड्स वीक, ये तीन इंपॉर्टेंट वर्क है, खासकर आपने ध्यान रखना है बेगर्स ओपेरा का। तो ये थे न्यू क्लासिकल पोइट्री की हम बात कर रहे थे, खासकर यहाँ पर पोप और जो है जोनाथन स्विफ्ट को डिस्कस किया। इससे आगे हम जो है ट्रांजिशनल पोइट्स की बात करेंगे। थैंक यू।